ओके, बट इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट फोर्सफुली, फोर्सफुली अगर आपको करना भी है, मल्टीपल डेटा को रखना भी है, तो वो कौन सा प्रेफरेंस फॉलो करेगा? हाईएस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा स्ट्रिंग को। नेक्स्ट प्रेफरेंस विल बी कॉम्प्लेक्स, आफ्टर दैट फ्लोट एंड देन इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं समझा देता हूँ अभी आपको अच्छे तरीके से। देखिए, अगर you already know that if you have given integer in array, then each and every character should be what? Integer only. Okay, but if you want to keep element like this 4, 4.5, 3 plus 2j, and then a, if you have kept your element like this is what? Heterogeneous data, no? सारे different different है. Then array will follow these preferences. Higher preference will be given to a string. So what do you mean by this? So that in your like array, these are the elements. So each and every element will be converted to string. Why? Because in this array there is presence of string. तो ये क्या हो जाएगा? 4 string, 4.5 string, 3 plus 2j string, and a string. Understood? Now, अगर a नहीं रहता, then preference will be given to complex. So now it will be converted into 4 plus 0j, 4.5 plus 0j, and 3 plus 2j. Understood? अगर 3 complex नहीं रहता, तो now 4.0 and 4.5. आई होप इससे आपको चीजें समझ में आ गई। बताइए, ये चीज समझ में आई कि नहीं? कि if in your array, if string will be there, then each and every element will be converted to string only. If complex will be there, if string will not be there, only complex will be there, then each and every character will be converted to complex. Now if complex will not be there, if float will be there, then each and every element will be converted to float. Understood? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. ठीक है, आई विल बी शोइंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे क्या था? np डॉट एरे 67891.3. नाउ व्हाट इट विल लीड अस टू? इट विल कन्वर्ट ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फ्लोट। देखिए, y को आपने लिखा 6.7.8.9.1.3. Why? Because it will follow the order or preference like this. Okay, if you will be knowing, then y dot data type is float only. Now 6, 7, 8, 9, 1.3 and a. सो ये क्या करेगा? सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। देखिए, 6, 7, 8, 9, 1.3 and a. Understood? So what it has done? It has converted in the form of string. Now 6, 7, 8, 9, 1 plus 2j. So how it has converted? 6 plus 0j, 7 plus 0j, 8 plus 0j, 9 plus 0j, 1 plus 2j. I hope you understood. If you have taken 6 plus 2j string 1.5 and 3, so each and every character converted to string. Okay, so you might be knowing, sir, ये U64 क्या है, ये U32 क्या है? What do you mean by this? Okay, so we will be seeing like, see, अगर integer है तो it will be represented like this. Okay, अगर float है, so it will be represented like this. This will be what? Bit size. Okay, complex and then complex. This you are seeing, no? Unit. These are what? Unsigned integer. This is what it is used for string only. तो कहीं भी डेटा टाइप में अगर u लिखा हुआ है ना, तो u का मतलब आपको बेसिकली शो कर रहा है क्या? आपको शो कर रहा है कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, एंड दीज आर बिट साइजेस, 64 बिट साइज, 32 बिट साइज, लाइक दिस। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड किस तरीके से प्रेफरेंस फॉलो करेगा स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट एंड इंटीजर। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको? चलिए, नाउ you already know that array contains of its index value, so it will help us in indexing and slicing as well. Okay, and arrays are mutable also. तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक array बनाया, and if you now want to know zeroth index, then you can take it.
If you want to know multiple, then you can also get it. So these all are the things that we have studied earlier. जैसे indexing slicing करते हैं ना, वैसे ही same करना है. Okay. If you want to replace any value, then you can simply write its index value and it will be replaced. See, समझ में आ रहा है? तो अगर आपको एलिमेंट को हटाना है उस जगह से, देखो यहाँ पे 6 था, 6 को हटाकर आप क्या करना चाहते हो, 100 रखना चाहते हो. सिंपली जैसे उधर किए थे ना हम लोगों ने, सेम यहाँ पे करना है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ मोर एडिशनल फंक्शनैलिटी मैं बता रहा हूँ इसमें. नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट वन एरे which contains of all value as 0, अगर सारे वैल्यूज आपको जीरोस चाहिए तो आप क्या करोगे, np डॉट जीरोस एंड यू नीड टू गिव द शेप, व्हाट शेप यू वांट. सो सी, np डॉट जीरो 3,3 मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम बनेंगे, सारे में 0 0 रहेंगे. ओके, सारे में 0 0 रहेंगे एंड बाय डिफॉल्ट इट्स वैल्यू विल बी फ्लोट ओनली. जब भी आप np डॉट जीरोस लिखोगे, ये फ्लोट में ही कन्वर्ट करके देगा. Okay. Now, if you want to convert into different data type, you can write d type equal to integer. जैसे ही आप d type equal to integer लिखोगे, ये सारा चीज इस तरीके से शो करके देगा. आई होप आपको समझ में आया कि if you want to create one array which contains of all element as 0, अगर आपको 0 चाहिए तो आपको क्या करना है, np डॉट जीरोस लिखना है एंड उसमें उसका शेप लिख देना है. आपको 4 5 6 7 जितना भी आपको चाहिए, दैट इज द थिंग. ओके. नाउ if I want to create one array which contains of all value as 1, तो आपको यूज करना np डॉट वंस. नाम में ही रखा है, देखो np डॉट जीरो मतलब सारा 0, np डॉट वंस मतलब सारा 1. ठीक है. और अगर आप डेटा टाइप नहीं लगाओगे तो ये फ्लोट में ही रखेगा, अगर आप डेटा टाइप लगा दोगे तो ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, समझ में आया. np डॉट वंस, इसमें आपने क्या किया, 2 रोज एंड 1 कॉलम, तो देखिए 2 रोज और 1 कॉलम जनरेट हो गया. ठीक है. नाउ व्हाट आई वांटेड कि यार यहाँ पे आई डोंट वांट दिस एलिमेंट टू बी जीरोस एंड 1. आई वांट माय ओन एलिमेंट. आई वांट टू प्रिंट whatever the element I like. So we will be using full option. np dot full, you want to give it shape, and whatever the element you want, you need to put element here, and whatever the data type you want, you can keep it. तो आपको क्या करना है, फुल ऑप्शन यूज करना है, फुल. अगर आपको कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है अपार्ट फ्रॉम वंस एंड जीरोस, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द नंबर इनसाइड योर एरे, यू कैन यूज फुल ऑप्शन. फुल ऑप्शन में क्या करना है, आपको शेप दे देना है एंड आफ्टर दैट यू नीड टू गिव व्हाट एवर द नंबर यू वांट. ओके. नाउ again, what if I want to make one array which contains of all element of diagonal element as 1. डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए, बाकी सारा 0 हो जाए. तो देखिए व्हाट यू विल बी यूजिंग, np डॉट आई यूज करेंगे एंड यू नीड टू गिव हाउ मेनी डायमेंशन वैल्यू यू वांट. तो आपको 5 चाहिए, तो 5 हम लोगों ने कर दिया, डेटा टाइप लगा दिया. ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, ये सारे एलिमेंट्स आपके डायगोनल एलिमेंट 1 हो गए, बाकी सारे 0 हो गए. इसको कुछ बोलते हैं ना मैथ्स में, if anyone knows about that thing, if your all element diagonal element is 1 and rest of आइडेंटिटी the element मैट्रिक्स. is, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी आइडेंटिटी. मैट्रिक्स. एग्जैक्टली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, ये समझ में आ गया. if you want to whatever the number you will give, no, that many diagonal element will come and it will do horizontally and vertically like that, सारे 0 and that will be diagonal element will be 1. Okay. Now what I wanted, so it contains of all diagonal element as 1 1 only, but मुझे 1 1 नहीं चाहिए, मुझे अपने मर्जी का एलिमेंट चाहिए. then you will be using np dot diagonal. np dot diagonal. So np dot diagonal, if you will be using whatever the element that you want, it will basically give you the same. Okay, समझ में आया. डायगोनल एलिमेंट्स देखिए इस तरीके से ये आपका क्रिएट होके आ गया. आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें. Yes, sir. ठीक है. These are some of the functionality that we'll be using. Okay. Next one is what? Range. So up to now, what we have used in for loop we have used, no? In for loop we have used range. Okay. But for loop is used for what? Sequential element like list, tuple. Okay, list
tuple we people used to, or string we people used to use. But in array, if we want to use multiple elements, अब आप ऐसे छोटा छोटा 3 क्रॉस 3 इस तरीके से उतना नहीं क्रिएट करोगे ना. इफ यू वांट टू क्रिएट बिगर एलिमेंट्स, then you will be using a range. A range means what? Array range. Okay, inside your array range, whatever the element that you want to create, simply write its starting value and its ending value and its step size. Same है उधर वाला जो range काम करता है ना, same यहाँ भी वही same काम करता है. फर्क इतना है कि ये कैसे काम करता है. और रेंज आगे लगा दीजिए, वहां पे रेंज लगाते थे. You need to keep orange. Okay, so we are what we are creating one array we are creating, and in that one starting value is 1, ending value is 10, and step size is 1. So it has print us the value like this. Now if you want to create 1 to 10 value and step size it should be 2, so 1 3 5 7 9. I hope you understood about these things. Okay, next one is line space. We can call it as linear space. Okay, so linear space, how it will be taking place. Suppose if you want a starting value and ending value, and if you want that this 1 and 5, a starting value and ending value should be divided into three parts. तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? लाइन स्पेस. अगर आप अपने स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो, या आप स्टार्ट 1 से 100 आपने लिखा, ओके, एंड नाउ यू वांट टू डिवाइड दिस एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ 4 to 5 पार्ट्स, सो व्हाट यू नीड टू राइट 4. सो ये क्या करेगा? 4 इक्वल डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा. 25 25 25 25 ऐसे. तो 25 50 75 100. अंडरस्टूड? ये इक्वल पार्टीशन में आपको डिवाइड कर देगा. सी np डॉट लाइन स्पेस 2 starting value, ending value is what? 8, and how many times to divide? 4 times we wanted to divide, so 2 4 6 8. ओके, ये चार पार्ट में डिवाइड कर दिया. सेम देखिए 1 10 and 5. so starting value is what? Starting value is what? 1, and ending value is what? 10, and how many times you want to divide? 5 times. तो ये क्या करेगा? 1 3.25 5.5 7.75 and 10. अब ये कैसे कैसे आपको पता चलेगा? So see 3.25 minus 1 2.25, 5.5 minus ये 2.25 2.25 2.25. अंडरस्टूड? तो ये हो गया ना 10. देखिए मतलब ये बेसिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये समझ में आ गया आपको? इक्वल पार्टीशन में ये सभी को डिवाइड कर देता है. ओके, नाउ what if we have not given ending this, how many times we need to divide? अगर आप भूल जाते हो कि लास्ट में कि कितने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, तो what it will do, it will divide it in the form of 50 parts. मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आपने स्टार्टिंग वैल्यू दिया, आपने एंडिंग वैल्यू दिया, and after that you forget to write how many times we need to divide. आपने स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू दे दिया, or you have used np dot line space. So what it will do, it will divide your number into 50 parts. By default it is 50 parts. तो देखो 1 5 लिख दिया, 1 से 5 के बीच में इसने सबका डिवीजन कर दिया 50 पार्ट्स. Understood? If you have given your how many times we need to divide 1 4 5, and here you have kept 2, then it is okay. ये क्या करेगा? ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में. बट इफ यू हैव नॉट गिवन एंडिंग वैल्यू, तो ये क्या करेगा? ये आपको 50 पार्ट्स में डिवाइड कर. आई होप आपको समझ में आया यहाँ पे तक, लाइन स्पेस तक चीजें समझ में आई. लाइक np डॉट लाइन स्पेस आपको 50 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये सारा चीज. नाउ most important interview question that you need to keep in mind, difference between list and array. लिस्ट भी तो समथिंग सेम ही काम करता था, तो ये एरे की से डिफरेंस कैसे है? सो नाउ ये एरे मतलब मैंने डिफरेंस अपने नोट्स से डायरेक्टली आपको यहाँ पे
रख के दिया है, सेम एज इट इज आपको ध्यान में रखना है, एंड दीज आर लाइक प्रीटी मच गुड डिफरेंसेस दैट आई हैव टेकन इट आउट। ठीक है, देखिएगा, मेन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। सो सी, द ऑपरेशन आर अप्लाइड ऑन द कंप्लीट लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट में कि वट एवर द ऑपरेशन दैट यू आर परफॉर्मिंग हियर, this is one list. Okay, if we want to perform addition, okay, then we can't write element like this, ये आपका error दे देगा। why? Because operations are performed on what? Complete list। ओके, तो आप अगर इस तरीके से एलिमेंट लिखते हो और यहाँ पे प्लस कर दे तो ये एरर दे देगा। ओके, नाउ ऑपरेशन आर अप्लाई, एरे में देखते हैं इसको, ऑपरेशंस आर अप्लाइड ऑन द इंडिविजुअल एलिमेंट। मतलब क्या होता है, इफ यू हैव केप्ट इट एज अ लिस्ट 2 4 6 8, and if you want to add it, if you want to add +2 in this, it will give us the error। okay, it will give us the error। Now if we want to perform the same thing in array, so what you need to write, np dot array 1 2 3 4, and simply you need to write a plus 2 directly। if you write a plus 2, yeah, directly if you write +2 here, then it will work, but it will not work in list। why? Because this whatever that data that contains of list, it will be performed to each, it will be performed to all element, but in array it will be performed to each element। कि एक दो से ऐड हो जाता है, दो दो से ऐड हो जाता है, तीन तीन से ऐड हो जाता है, चार चार से ऐड होता है। इसमें नहीं होता है, इसमें क्या होगा, ये पूरा लिस्ट एक बार ऐड होगा। तो ये आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, डायरेक्टली आप नहीं परफॉर्म कर सकते हो। बस सी हियर, विद द हेल्प ऑफ लाइक एरे वी विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। मैं इसको एग्जांपल से भी बताऊंगा अभी नीचे। व्हाट सेकंड डिफरेंस इज, इट कंज्यूम लार्ज मेमोरी। ये क्या करता है आपका, बहुत ज्यादा ही मेमोरी कंज्यूम करता है। कौन सा? आपका लिस्ट बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, और ये जो एरे होता है ये कम मेमोरी कंज्यूम करता है। ओके, कंप्यूटेशनल टाइम इज स्लो। लिस्ट का जो टाइमिंग होता है एग्जीक्यूशन के कोड का वो स्लो होता है। इट्स कंप्यूटेशनल टाइम इज फास्ट, लाइक इवन मोर देन 100% फास्ट। ठीक है, अभी हम लोग डिफरेंस मतलब इसको देखेंगे चेक करके। ओके, सिंगल डायमेंशन होता है, लिस्ट इज व्हाट, सिंगल डायमेंशनल। लाइक यू कैन क्रिएट लिस्ट, तो उसमें क्या होता था, ऐसे सिंगल डायमेंशन हम लोग क्रिएट कर देते थे। बट आपका जो एरे होता है वो एन डायमेंशन, मतलब 0 से 32 डायमेंशन तक आप क्रिएट कर सकते हैं। इन लिस्ट सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा यू कैन स्टोर, बट इन एरे सेम टाइप ऑफ डेटा यू कैन स्टोर। ओके, एक चीज यहाँ पे ये है, लिस्ट कैन बी अपेंडेड एंड साइज कैन बी एक्सटेंडेड। मीन्स लिस्ट का साइज जो होता है वो बढ़ाया जा सकता है, बट एरे once you have created 3 3 से you cannot be able to change it। ओके, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब लिस्ट में व्हाट यू नीड टू, नो नीड ऑफ इंपोर्टिंग एनी मॉड्यूल, आपको कोई भी मॉड्यूल लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं करना है। बट इन एरे यू नीड टू क्रिएट इट। ओके, यू नीड टू क्रिएट इट। ओके, समझ में आ गया? प्रिफर्ड फॉर शॉर्टर सीक्वेंस ऑफ डेटा, मतलब छोटे छोटे डेटा के लिए होता है, ये लार्जर सीक्वेंस ऑफ डेटा के लिए होता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब नाउ आई वांटेड टू शो यू लाइक विच वन इज फास्टर, लाइक एरे इज फास्टर और लिस्ट इज फास्टर। ओके, सो देखिएगा किस तरीके से हम लोग करते हैं इसको चीजों को। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक थोड़ा सा समझना है इसको। हम लोग इसको क्या किया, इंपोर्ट कर लिया टाइम को। ठीक है, in order to check like which one is faster, we have taken, before working on this process we need to find out starting time। so what will be taking, time dot time, ये फंक्शन होता है बेसिकली, इससे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग टाइम आपको मिल जाएगा। we have taken one list। okay, in that list what we are doing, we are taking range from 1 to almost 10 lakh, and what we are doing, we are just appending, in that list we are appending whatever the value of variable that we have got, we are multiplying with 2। जितने भी नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक को 2 से कर रहे हैं, दो को 2 से कर रहे हैं, तीन को 3 से कर रहे हैं, चार को 4 से कर रहे हैं, इतना आप 10 लाख बार कर रहे हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव टेकन इट एंडिंग टाइम। एंडिंग टाइम इज टाइम डॉट टाइम। ओके, सो स्टार्टिंग टाइम मिल गया, एंडिंग टाइम मिल गया। इफ यू विल बी प्रिंटिंग इट्स टाइम, then it is showing
1 सेकेंड 46 मिली सेकेंड। ओके, इतना टाइम इसने लिया। एंड नाउ इफ वी आर टेकिंग विद द हेल्प ऑफ, इफ वी आर टेकिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एरे। तो एरे में आप देखिए स्टार्टिंग टाइम क्या है, टाइम डॉट टाइम, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग टाइम ले लिया, और यहाँ पे यू कैन ऑलरेडी टेक दैट np डॉट ऑरेंज वी हैव टेकन, एंड वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे एंडिंग टाइम ले लिया। देखिए कोड भी छोटा है, सब चीज छोटा है, एंड व्हाट वी आर प्रिंटिंग, एंडिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम। तो देखिए ये कितना आ गया, ये आपका 0.03 मतलब मिली सेकेंड आ गया, मतलब ये माइक्रो सेकेंड में है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 1.46 सेकेंड लिया, और एरे ने कितना लिया, 0.03 सेकेंड। समझ में आया। तो कौन कौन सा फास्टर है, एरे फास्टर है या लिस्ट फास्टर है? एरे। एरे फास्टर। अरे सर। आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो इसको काइंडली एग्जीक्यूट करना, इन चीजों को देखना, आपको सही लगेगा। आप यहाँ पे 10 लाख 1 करोड़ बार लेना चाहते हो, उतनी बार लेकर देखना कौन ज्यादा टाइम लगाता है। ओके, तो आप देखिए ये जरूरी नहीं कि ये 1.46 आपके सिस्टम में आए। इट मे माइट बी कि आपका अगर सिस्टम रैम स्लो है तो आपको इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, बट वट एवर द टाइम दैट वी आर टेकिंग हेयर, ये क्या हो जाता है आपका, एरे और लिस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को यूज करते हैं। नाउ अर्थमेटिक ऑपरेशन यू माइट बी नोइंग कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सारी चीजें हम लोग इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे ऐड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ np डॉट एड, np डॉट सब्ट्रैक्ट, np डॉट मल्टीप्लाई। ये दिखा देता हूं मैं आपको। सो आई हैव टेकन वन एरे, एंड यहाँ पे देखिए 2 4 एक लिस्ट है, इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, 4 को ऐड करना चाहता हूँ। तो आपको लिखना पड़ेगा np डॉट एड वॉट एवर द लिस्ट यू हैव टेकन, कॉमा विच एलिमेंट यू वांट टू ऐड। तो देखिए 6, 8। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। इफ यू वांट टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन देन 1, 3। कैसे होता है, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, एंड 4 में से 1 गया 3। समझ गए। इफ यू वांट टू परफॉर्म मल्टीप्लाई यू कैन परफॉर्म मल्टीप्लाई। कैसे, 4, यहाँ पे देखिए 4 2 8 एंड 4 2 8। समझ में आएगा, 2 2 4 एंड 4 2 8। यहाँ पे डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड, फ्लोर डिवाइड करना चाहते हो तो फ्लोर डिवाइड। आई होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया, फ्लोर डिवाइड समझ गए ना, फ्लोर डिवाइड किसको बोलते हैं, डिवाइड किसको बोलते हैं। डिवाइड में आपका डेसिमल पॉइंट्स आ जाता है, फ्लोर डिवाइड में आपका डेसिमल पॉइंट्स नहीं आता है। एंड नेक्स्ट वन इज मॉडुलस, मॉडुलस इज व्हाट, रिमाइंडर। समझ में आया ये चीजें। ये समझ में आया। हम यस लोग सर। क्या 2, 4 एंड वी सर। आर व्हाट, 4 ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 6 एंड 8। इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग देन क्या हो जाएगा बताइए, -2 एंड यहाँ पे क्या है आपका 0। ठीक है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इट तो कितना हो जाएगा 8 एंड 16। इफ यू आर डिवाइडिंग इट तो क्या हो जाएगा 0.5 एंड 1। ये किसके बेसिस पे हो जाएगा, आपका नॉर्मल डिवीजन के बेसिस पे। फ्लोर डिवीजन के बेसिस पे क्या हो जाएगा 0 एंड 1 पर्टिकुलरली। एंड आफ्टर दैट मॉड, मॉड मीन्स व्हाट, इफ यू वांट, इफ यू आर डिवाइडिंग व्हाट एवर द रिमाइंडर दैट विल बी गेटिंग, तो रिमाइंडर आप करोगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, यस सर। ओके। सो आज के लिए इतना ही।